है ना, क्योंकि जितना हम लोग पढ़ते हैं उस प्रिपरेशन के दौरान उतना हम ग्रेजुएशन वगैरह में नहीं पढ़ते. देन व्हाई नॉट टू हैव दैट सर्टिफिकेट फॉर इट, सम काइंड ऑफ अ रिकॉग्निशन कि भाई इसने प्रीलिम्स क्लियर किया, इसने एक सर्टिफिकेट होना चाहिए. नहीं, It's a big thing. To clearing a prelims, to clear an interview, to go to the main stage, interview stage. कोई institutional level पे nobody talks about it. तो ये मेरा अटेम्प्ट था जो मैंने किसी को नहीं बताया था मैं अटेम्प्ट दे रही हूँ. सिर्फ 2-3 लोगों को पता था. भाई सोशल प्रेशर इतना होता है ना, फ्रेंड्स से, फैमिली से. अक्सर बच्चे जब आते हैं ना, फर्स्ट आते हैं नए नए, तो उनका टारगेट होता है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट रैंक. जब आप 12th में अच्छा कर चुके थे, 10th में भी अच्छे थे, फिर IIT में पहुंचे, फिर वो और थोड़ी सी उसको हवा लगती है ना? फिर तो यही था कि 21 में निकाल देंगे. हाँ, प्रीलिम्स में ही पटक दिया. जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो बीच बीच में ये ख्याल आया कि यार दोस्त क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो कितना प्रेशर बनाता था. I was active in Instagram and everything. आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ाई का अल्टरनेटिव पता है क्या है, कि पढ़ा नहीं जा रहा, अब स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ी तो जा नहीं रही, NCERT उठा के पढ़ी तो जा नहीं रही है, तो क्या करें, वीडियो देख लेते हैं. बहुत बड़ा मिथ है कि काम के साथ साथ पढ़ाई नहीं करी जा सकती. आप 1 साल दे दो इस प्रिपरेशन को, अगर हो जाता है तो नहीं होता, अगर नहीं होता देन टेक अप समथिंग, बिकॉज आपकी 1 साल में वो बेस बन जाता है. आप कभी भी फुल टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते सिर्फ पढ़ के. यू हैव टू बी रेडी विद प्लान बी मोर देन द योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज व्हाट आई फील. सो आई विश कि किसी ने पहले गाइड किया होता तो मैं भी साथ में कुछ कर रही होती. आई हैव प्लान F तक है मेरे पास. आई एम अ वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन. पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. एक देयर आर पीपल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं वर्क करना, बट पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है ना, तो वो कुछ नहीं करते. फिर अच्छा सच बताओ, जैसे आप पढ़ रहे थे, क्या 24 घंटे पढ़ रहे थे? इस वाली प्रिपरेशन में मैंने पर्टिकुलरली देखा है कि डेली हाईज एंड लोज आते हैं. डेली कभी तो आपको लगता है मैं तो फोड़ूंगा. ये ना मैम, ये जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं ना, ये एक टाइम पे ही अच्छे लगते हैं. The person who gives first attempt is different. Second attempt person is different. Third attempt person is different. Fifth attempt person is different. और last attempt person वो एकदम जिहादी वाले बोर्ड में रहते हैं. Hello friends. Today we have great achievers with us. People who have earned their place in the society as well as in the heart of yours. So today we have Animesh with us, Rahul and Tripti. They are all selected candidates and we will like to hear from them about what lessons they have learned, what risks they have taken, what kind of fears they have faced and what advice they will give you. And we will try to keep this conversation as honest as possible. So, I will like them to introduce themselves because मैं introduction दूंगी, it will always be incomplete because a person knows themselves the best. So, Animesh, we will start with you. Sure, ma'am. So as you said, I'm Animesh Pradhan, and I was born and brought up in a place in Odisha called Talcher, and then where I did my schooling till 12th, from LKG to 12th in a single school, which I love a lot, DV Public School, Kalinga area. Then I moved on to NIT Rourkela, where I did my BTech in Computer Science and Engineering, and I graduated in 2021. And then through campus, I got placed in Indian Oil Corporation. And I worked as information systems officer there, and I did my entire preparation. I started my full-fledged preparation in early 2022, and I was posted in IOCL, and I did not take any extended leaves while preparing or appearing. And this was my first attempt with UPSC, and extremely blessed, extremely grateful and lucky to have gotten the rank of 2. And my optional was sociology as well. So that's all, and looking forward now to Labasna. So yeah. Shopping हो गई? I mean, I'm trying to, as I was talking to you, I was trying to lose bit of weight and then do the shopping. Otherwise, all the shopping would go into waste. But yeah, abhi the mission is to lose some weight and then start the shopping spree. But the advice is always buy loose because it is easier to get it. Exactly. And health had always been a lesser priority while preparation. At least for me, physical health took a toll because you keep it on a back seat. So now you kind of realize that how important it was, and now you have to thoda start up the pace and start giving some attention.
So I'm trying to do couple of things around it, but have not been successful yet. But कोशिश जारी है. मुझे लगता है ये तो हम सबकी कोशिश है. जल्दी कामयाब होंगे. So राहुल, please. हाँ जी मैम, मेरा नाम राहुल शर्मा है एंड आई एम फ्रॉम संगरिया राजस्थान एंड 2020 IIT रुड़की से मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में. तभी से प्रिपेयर करना चालू किया एंड ये वाला 23 वाला थर्ड अटेम्प्ट था. इसमें आई गोट रैंक 628. ओके. हाँ जी मैम. और लाइक अभी जैसे आप सेलेक्ट हो गए हो तो सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है? ऑन अ लाइटर नोट कि अभी कुछ दिन और नहीं पढ़ना है, यही आती, क्योंकि 3 साल लगातार वो बस वही रूटीन था कि पढ़ना. निर्वाण वाली फीलिंग आती है, नहीं आती है? वो तब आ रही थी पढ़ते वक्त आ रही थी कि बस यही तो करना और कुछ करना ही नहीं है. वेरी ट्रू. तृप्ति प्लीज. मैम तृप्ति कलंस, जैसे आपने नाम बताया, और क्लास 12 तक की स्कूलिंग LKG से गोंडा से हुई है मेरी, फातिमा स्कूल. और उसके बाद मैम ग्रेजुएशन BCom ऑनर्स किया था कमला नेहरू कॉलेज DU में. फिर मैम वहीं से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2017 से. तो ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और इस बार 199 रैंक आई है. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू Thank you. ऑल. तो सबसे मुझे ऐसा लगता है UPSC प्रिपरेशन में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी जो जर्नी है. हाँ जी. Like, tell me Rahul, how have you evolved as a person? मैम अगर शॉर्ट में बताएं तो इमेच्योर, ओवर एक्साइटेड से लेके मैच्योर एंड हम्बल, बस ये वाली जर्नी रही है. Very बाकी true. तो देयर आर मैनी थिंग्स वी लर्न मैम, बस थोड़ा सा एज ए पर्सन इस तरफ इवॉल्व हुए हैं. अच्छा एक बात बताओ कि मतलब ऐसा मुझे कई बार लगता है कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं भी हुई होती हाँ जी. तब भी मैंने जो UPSC प्रिपरेशन से सीखा है वो मतलब मैं आई वुड हैव स्टिल चेरिश्ड इट. ऑब्वियसली मैम. इज इट द सेम इमोशन विद यू ऑल और डू यू फील कि नहीं मतलब अगर ऐसा लर्निंग नहीं था? नहीं, आई फील कि ये ऐसा ही है मैम. अगर नहीं भी सक्सेसफुल होते तो हमने इतनी सारी डायमेंशंस को पढ़ लिया है कि अभी थोड़ा सा कंप्लीट फील हो रहा है. आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो कि हो सकता है बहुत सारी डायमेंशंस एक्सप्लोर नहीं भी करी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कर ली है जो ये मान लो ग्रेजुएशन तक भी नहीं करी थी. But ma'am, I think one more, like, for me, it transforms everybody on a personal front, not just from intellectual point of view say, but as a person, जैसे Rahul mentioned कि you become very calm, humble, matured. I think it humbles everybody down. You become more calm, practical. But अगर नहीं होता तो then I mean, it's not a good experience for anybody who would not It's clear not. it. But the thing is, we were talking also the other day as well कि nobody honors कि आपकी जो transformation हुई है institutional level पे. Yes. So that's also a point कि does not matter मैं as a person कितना evolve किया होता अगर I would not have gotten this rank या फिर I would not have cleared क्योंकि this. उसके साथ ना ही कोई सर्टिफिकेट डिग्री Exactly. रिकॉग्निशन अटैच्ड Exactly. नहीं. ट्रू, हमसे कोई नहीं पूछता, Exactly. ये हो Exactly. जाता. बट मतलब मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट करे या कोई भी करे, जो भी करे, है ना. ये मेरा खुद का पर्सनल बिलीफ है कि BA, BCom, BTech या हम किसी भी डिग्री की बात करें, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात करें, हम बहुत लिमिटेड डायमेंशन में सीखते हैं. हाँ जी. और UPSC में बच्चा उसका 10x या 100x कह सकते हैं या हो सकता है 1000x भी सीखता For हो, sure. कह सकते हैं. है ना. क्योंकि जितना हम लोग पढ़ते हैं उस प्रिपरेशन के दौरान उतना हम ग्रेजुएशन वगैरह में नहीं पढ़ते. हैं. देन व्हाई नॉट टू हैव दैट सर्टिफिकेट फॉर इट, सम काइंड ऑफ अ रिकॉग्निशन कि भैया इसने प्रीलिम्स क्लियर किया, इसने एक सर्टिफिकेट होना चाहिए. नहीं कि अपने को कहीं पे अपन जाएं और वी कैन शो दैट वी हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स. Exactly. आई विश मैम कुछ तो होना चाहिए कि होना बाद चाहिए. में हेल्प भी मिल जाए इससे इंसान को थोड़ा क्योंकि और उसने करा है मोटिवेशन ना, होगा उसने कुछ पढ़ने तो का. अचीव किया है. उसने इतने सारे बच्चों को छोड़ के उस लेवल पे आया है. या उसका मेंस का है तो दैट पर्सन शुड बी एबल टू शो कि भाई मैंने मेंस क्लियर किया, आई एम गुड एट राइटिंग, हाँ, correct. टेक मी टू जर्नलिज्म, Correct. गिव मी अ जॉब एट न्यूज़पेपर. That's a two-way process, ma'am. I think the industry has to also Evolve evolve themselves कि ऐसे way में कि they also accept कि these people would be probably twice more brilliant as your current workforce would have gone through this process जो कि interview clear किए, mains clear किया है. They come with a certain level of preparation and credibility. So LinkedIn पे when you put in कि कुछ profession तो वो भी एक option ऐसा होना चाहिए कि cleared prelims, because it's a big thing to clearing a prelims, to clear an interview, to go to the main stage, interview stage. कोई institutional level पे nobody talks about it.
कुछ एक है नहीं उसकी सर्टिफिकेशन, Yes. एंड इंडस्ट्री से ऑल्सो इट हैज टू कम फ्रॉम टॉप डाउन लेवल तक कि आप उनको रिकॉग्नाइज करें, एंड उनसे तो सेकंड हैंड आएगा, फर्स्ट हैंड तो आप सप्लाई साइड से दो, गवर्नमेंट साइड से दो, Yes. यू डू Yes. समथिंग। मतलब आई एम ट्राइंग टू डू इट एट सिद्धार्थ कि हम सर्टिफिकेट दें, बट उसका से ज़्यादा है गवर्नमेंट देना हमें करेक्ट। हाँ जी, कि भाई इस बच्चे ने इंटरव्यू पास किया है। उसके लिए मैम उन्होंने किया है एक्चुअली, शायद 2019 से ये चीज़ हुई है कि जो इंटरव्यू अपीयर किए हैं उनके लिए एक दो some ऑप्शंस kind खुले of- हैं, हाँ जी। जैसे एक स्पोर्ट्स Sports अथॉरिटी ऑफ authority, हाँ, स्पोर्ट्स उसका अथॉरिटी last ऑफ year इंडिया IOCL ने ने भी लिया था, PGCIL ने भी, कुछ PSUs कुछ ने। कुछ ऐसे ऑप्शंस खुल रहे हैं, हाँ जी, और ये प्राइवेट इंडस्ट्री में भी खुलने चाहिए, करेक्ट। जी मैम। क्योंकि मतलब अगर जैसे राहुल आपकी एक्सपीरियंस को देखें तो यू वुड हैव बीन अ बीटेक, हाँ जी, बट आफ्टर प्रिपरेशन यू नो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स एंड व्हाट एल्स एंड व्हाट नॉट। बिल्कुल मैम। तो एक किसी भी और इंजीनियर से यू आर बेटर कॉम्पिटेंट टू गो इन एनी मैनेजरियल पोजिशन, ट्रू मैम, वी कैन से दैट। we can say that, है ना? And there might be other people who might not have got into the list, but they were equally competent in हाँ जी, both their BTech and the areas of UPSC, you know, the study of UPSC. बिल्कुल मैम। तो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज खुलनी चाहिए। फॉर श्योर। तो अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता था शुरुआत में? I think the failure का fear was the most evident one, and I just had extreme luck that I did not face that। एक बार में हो गया, but लगता था कि जैसे as Rahul was mentioning कि वो same routine and वो थक गए थे। I did not have the energy to give a second attempt. I would have given it for sure. I had made up and I'll give 3 attempts to this exam, but वो लगता था कि नहीं, मतलब और नहीं हो सकता, because it's not a fun process. It's where after एक बार आप पढ़ ले कोई standard book, एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ ले, एक बार Spectrum पढ़ ले, तो that's interesting. After that's a fun, boring process. And when you are in a 11th, 12th में या graduation में, everybody around you is studying. But आप इस level of when you're in early 20s, everybody is trying to build a career, having their social life, everything, other aspects of the life को dedication दे रहे हैं, you will not be able to. You have a lot of sacrifices to make. You have a constant comparisons. अगर नहीं हुआ तो lot of people जो are not putting a lot of efforts मुझसे आगे चले गए होंगे. I'd still be stuck with Revolver 1857. तो वो those things also came to my mind कि कहीं ना कहीं I'll lose my prime years if I don't clear, and if I come as a failure, then I think this is also one important point कि UPSC aspirants in general make their entire identity as हम UPSC के लिए पढ़ रहे हैं subconsciously, हाँ. and everybody around you hype up कि ये तो future IAS है, future IAS है, and वो लगता था if I do not clear this, then probably I'll lose my identity, a kind of it. हाँ. But I understand कि it should not be the case, and UPSC is not everything, but including me, I had also made myself कि everybody around me knew कि I am preparing for UPSC. ये बहुत बड़ा चैलेंज है। Correct. मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं ना अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, किसी को बताओ मत यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, Correct. ट्रू मैम। नहीं तो सोशल प्रेशर इतना हो जाएगा ना। Yes. ऐसा किसी ने बोलना स्टार्ट किया था, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहिबा, ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया किया था? था मैम, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और आप जैसे कह रहे हो ना कि नहीं बताना चाहिए, हाँ। तो ये मेरा अटेम्प्ट था, जो मैंने किसी को नहीं बताया था मैं अटेम्प्ट दे रही हूँ। हाँ। सिर्फ 2-3 लोगों को पता था। भाई सोशल प्रेशर इतना होता है ना, फ्रेंड्स से, फैमिली से, सिर्फ मम्मी पापा और 2-3 दोस्तों को। बस। तो जाके मैं बहुत मेंटली पीस में थी, तब ये अटेम्प्ट दिया था। बिकॉज वरना प्री भी होता है ना, तो क्वेश्चन सबका कॉल आएगा कि अच्छा कैसा हुआ एग्जाम, कैसा हुआ, वो एक प्रेशर, उसको झेलना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। मुझे तो उससे लगता हटने के है लिए दिमाग में वही चलता रहता है, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ exactly. तो, वो मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा। बहुत सही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मैम वही मेरे लिए, जैसे फर्स्ट मेरा तो आपसे ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं, तो पहले अटेम्प्ट तक तो यही होता है, फियर ऑफ फेलियर, कि वो तो जो लाइफ में पहली बार फेलियर देखा था वो यही देखा यूपीएससी में। फिर उसके बाद तो मैम यही होता है कि किसी तरह बस अब मिल जाए, कोई एक रैंक मिल जाए, बस मिल जाए। वो जो डर होता है ना, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स तक लेके जाता है फिर। हाँ, और हर अटेम्प्ट के साथ एक ना फीलिंग ऑफ पास्ट बर्डन हाँ, भी साथ चलती है चलते हैं। कि और फिर क्या वही होगा। आप काम और कंपोज जैसा बोला कि वो भी धीरे धीरे आता रहता है हर अटेम्प्ट के साथ। हम्बल हो जाते हैं। पहले ना जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब कोई बच्चे, अक्सर बच्चे जब आते हैं ना, फर्स्ट आते हैं नए नए, तो उनका टारगेट होता है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट यही रैंक। मैं कहने वाला था, ये मेरी वाली इमेच्योरिटी थी। मतलब वो एक इनोसेंट ईगो होती है बेसिकली, और
जब आप 12th में अच्छा कर चुके थे, 10th में भी अच्छे थे, फिर IIT में पहुंचे, फिर वो और थोड़ी सी उसको हवा लगती है। फिर तो यही था कि 21 में निकाल देंगे हर हाल, प्रीलिम्स में ही पटक दिया। सो इट वाज लाइक कि हाँ, उसके बाद फिर कई दिन तो रोने में निकल गए कि यार ये मेरे साथ थोड़ी होना था, अपन तो स्टार वाले हाँ, कैंडिडेट कि है। क्यों? हाँ। लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो फेलियर सिंक हुआ, है ना, उसके बाद फिर से चालू हुआ। फिर वो कुछ चीजें ऐसा ये भी है ना कि द थिंग विच डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। यस, इट्स अ हम्बलिंग इफेक्ट, हाँ, लॉट ऑफ हम्बलिंग इफेक्ट। तो अच्छा, जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो बीच बीच में ये ख्याल आया कि यार दोस्त क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो कितना प्रेशर बनाता था? मेरे तो लाइक फोमो होता है मैम, एक्चुअली बहुत होता है। ज्यादा। मैं तो बहुत दूर रहता था, मतलब मैंने तो फोन में से इनफैक्ट यूट्यूब भी हटा दिया था। हाँ, हाँ, उसको भी डिसेबल कर दिया, बाकी तो सब हटा ही हुआ था ऑलरेडी। टेलीग्राम के बारे में बताओ मुझे। But I had a different opinion. I was active in Instagram and everything. But ये FOMO होता था, और एक FOMO होता था अलग तरह का FOMO is like for example somebody was going to कोई जयपुर के कोई फोर्ट पे and उसकी स्टोरी डालते थे। मेरे दिमाग में ये होता था कि यार ये फोर्ट के बारे में तो पढ़ा ही नहीं हूँ मैं, I like to Google it up. तो there was two type of things कि everybody उससे you'll always in that preparation mode, तो you'll never enjoy the social media। वो guilt रहती थी कि यार मैं यूज कर, I should study। So वो every time I was enjoying something guilt ridden, okay। And second ये होता था कि everybody has, जैसे मैंने बताया कि everybody is having the best times of their life, just out of college, enjoy कर रहे हैं नए सिटी पे, और मैं यहीं हमेशा आके फिर पढ़ रहा हूँ। Since I was working, मेरे colleagues had a better work life balance, वो ऑफिस के बाद chilling and everything। और मैं दिल्ली में तो था, दिल्ली में पोस्टेड था, तो everybody weekends पे चले जाते थे मनाली, मसूरी and everywhere, and it was easy for weekend getaways, but I had to sacrifice। But I think that sacrifice was worthwhile. 100%, 100%। मैं तो इस फोमो से क्या करती थी, मैंने इंस्टा थोड़े टाइम तो ब्रेक लिया, बट वो ज्यादा नहीं हुआ कंट्रोल। तो जो फ्रंट पेज होता है ना, होम पेज, मैंने वो देखना बंद कर दिया बिल्कुल। मैं सीधा एक्सप्लोर पेज पे जाती थी, मैं स्टोरीज नहीं देखती थी, लोगों की फीड नहीं देखती थी कि फोमो ना हो। और रील्स है वो थोड़े टाइम के लिए अपना मेंटल उसके लिए देखती थी बस, थोड़ा वो चिल करने के लिए। हाँ, थोड़ा टाइम चाहिए होता था ब्रेक बीच में। टेम्पटिंग तो बहुत होता है, बहुत टेम्पटिंग है। शॉर्ट्स, रील्स, ये ओह माय गुडनेस। मैं आपको बताऊं, अभी ना आई वाज टीचिंग इन क्लास, सो मैंने क्या किया बच्चों के ना फ़ोन पे, मैंने कहा यू ऑल टेल मी द स्क्रीन टाइम, हाँ, है ना। जब बच्चे आते हैं ना मेरे पास, तो सबसे पहले ही ना, पहले 2-3 दिन में तो उनका मैं थोड़ा मांझती हूँ, मतलब हाँ, थोड़ा हाँ। ओरिएंटेशन उनका ठीक करती हूँ। क्योंकि पहले तो वो आजकल बहुत सारे लोग तो ना वो भूल गए हैं, मतलब बिकॉज ऑफ द व्हाटएवर द एनवायरनमेंट वी आर इन, द कमर्शियलाइजेशन वी आर इन, तो वो उनको लगता है कि टीचर तो क्या है ना, वो चेंज हो गई है वो चीज़ बहुत चेंज हो गई। तो पहले तो मैं वो ठीक करती हूँ उनका कि बेटा कम टू द ओल्ड स्कूल, आई एम योर द्रोणाचार्य। हाँ, कम टू द ओल्ड स्कूल, है ना, लेट अस करेक्ट यू देयर। पहले तो माइंडसेट ठीक कर दे, एंड सेकेंडली आई सी कि यू टेल मी द स्क्रीन टाइम। अब सोचो कितना स्क्रीन टाइम होगा बच्चों का। मेरे हिसाब से बताऊं तो 2 hours लग रहा हूँ। 2 hours में क्या होता है? नहीं, 2 hours तो वो जरूरत का होता है। अगर मस्ती वाला है तो आई वुड से कि 7-8 घंटे तो 7-8 हाँ। You also give a number. कुछ दिन मतलब मेरे ideally चले। it should be less than 2 hours। I stop the ideal world, we are in a real world। I think वैसे मतलब हो जाता है ऐसे दिन 5-6 घंटे। फिर भी सोचो ना बच्चों का कितना होगा स्क्रीन टाइम। 5-6 hours। 10 hours। So, out of a class of, if we say 100 students, there were only 10 students below 3 hours. Most of the people were above 7 hours, and nearly 25 people were more than 9 hours. And there was a one child with 14 hours. इस सर्वे को मैम कहीं पोस्ट भी करो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। काफी। मतलब आप सोच रहे हो 14 घंटे, 24 घंटे के अंदर से 8 घंटे तो नींद के निकल गए। अगर 8 घंटे हम मान रहे हैं, मतलब फोन इज लाइक, मैं मतलब 14 घंटे जब मैंने सुना ना, तो आई वाज लाइक कि यार खाता पीता भी फोन के साथ ही है क्या? हाँ, ट्रू। मतलब खाते समय भी क्या कोई एक्टिविटी नहीं बची यार बिना फोन के। ऑल वेकिंग आवर्स आर ऑन फोन। सो I mean है, the algorithm is built वैसा कि आप चाहता है कि आप लीव ही ना करो वो ऐप बिल्कुल भी।
पर अभी इतने alternatives हैं, रील से शॉर्ट, शॉर्ट से रील्स, फिर टेलीग्राम, एवरीथिंग यू कैन व्हाट्सएप। और पता है पहले तो मुझे शॉर्ट्स और रील्स का अंतर भी नहीं पता था। अंतर मुझे अभी भी नहीं पता है कुछ। नहीं पता? अरे शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब, हाँ रील्स और मतलब इंस्टा, इतना ही फर्क पता है। बस अच्छा हाँ यही है ना। मेन तो यही है। हाँ, कुछ मतलब- और भी है? आई मीन फीचर्स है कुछ कुछ के, इंस्टाग्राम थोड़ा ज्यादा savvy है, शॉर्ट्स पर्सनल ओपिनियन। अच्छा। आई थिंक बहुत ज्यादा अपडेट्स भी थोड़ा लेट हुए शॉर्ट्स में, रील्स केम अप थोड़ा बहुत ज्यादा रील्स इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम के। इस रील्स पे शायद वो ट्रेंड्स वगैरह चलते Insta's हैं। algorithm is more stronger as Exactly. compared to YouTube. A Like lot, उसको a आप lot. एक टाइम बाद you will stop scrolling. But reels में क्या होता है ना, you won't stop scrolling. Exactly. इट्स एडिक्टिव। Correct. Even I think the UI changes also are हाँ, similar कि वो true, ज्यादा true. आपको hooked up करके Exactly. रखता है। अच्छा और एक और फैड चलता है आजकल यूट्यूब पे पढ़ाई। हाँ कुछ बच्चों से बात हो रही है इंस्टाग्राम पे मेरी यही कि यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। मतलब how it helped me, like it helped, have you tried? नहीं मैम। I did, but then not like a class. But like कुछ एक टॉपिक चूज Yes. कर लिया, I do not understand this topic, तो ये टॉपिक पढ़ लिया 5 मिनट का वीडियो, Same. या फिर कोई 10 मिनट का वीडियो फॉर ये टॉपिक के लिए जो टॉपिक समझने, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, कि वो एनिमेशन डायग्राम के साथ थोड़ा बेटर हो जाता है। बट नॉट अ टीचर ऐसा करके, मतलब लॉट ऑफ एजुकेटेड जो कि ऐसा पढ़ाते हैं, बट फॉर अ टॉपिक वाइज के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा ज्योग्राफी में पढ़ रहा हूँ एक एजुकेटेड से ऑन यूट्यूब, बट एक टॉपिक वाइज जहाँ जहाँ नहीं पढ़े, फिर कुछ कुछ कंपाइलेशन वीडियोस, से प्रीलिम्स के टाइम लॉट ऑफ पीपल पुट ऑन प्लेसेस इन न्यूज़, व्हिच आर न्यूज़। एक बार मैराथन कर दिया PYQ लास्ट 10 इयर्स का, वैसे It helped? हाँ वो It helped. हाँ, वो these तो मैंने videos भी help. यूज किया है। हाँ It helped. हाँ, same. But did you keep like I always say to my students कि भाई आप पेपर पेन लेके जरूर बैठो, यूट्यूब पे बैठे हो तो। yes, if I had made a lot of notes उसी से, कुछ कुछ होते थे जो कि मुझे I was commuting to office, तो कान पे लगा के कर हाँ देता था। हाँ, वो अगर आप टाइम सेव करने के लिए कर रहे हो तो ठीक है। Exactly. तो I was always on, since काम था everything, तो 5 मिनट में मिले, I used to save एक playlist, तो उससे videos, but ऐसा नहीं कि as an alternative, but ऐसे efficiency बढ़ाने के लिए। But अगर मैं कुछ कर भी रहा था, I needed pen and paper in everything that I'm studying. Yes. So this is something, आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ाई का अल्टरनेटिव पता है क्या है? कि पढ़ा नहीं जा रहा, अब स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ी तो जा नहीं रही, NCERT उठा के पढ़ी तो जा नहीं रही है, तो क्या करें? वीडियो देख लेते हैं। समरी वीडियो। अब वो वीडियो देख लेते हैं और पेन पेपर कुछ है नहीं हाथ में, तो इट इज एन इंफोटेनमेंट। Correct. That is also something I have found out कि let's say for example there's a topic लक्ष्मीकांत की preamble which is like a 5-page जो कि आपका मैक्स 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स, उसके 3 घंटे के वीडियोस आते हैं। Because एक तो a lot of, no offense to anyone, but a lot of videos I have seen कि वो 3 घंटे का content they could have put in 1 घंटे, और 2 घंटे there are 1000 other things that goes in the video. Yes. तो वही infotainment हो जाता है। वो इंफोटेनमेंट हो जाता है कि इधर की बात उधर की बात, वो जोड़ जाड़ के, एंड यू नो द टॉपिक स्ट्रेचेस। Correct. और बच्चा अगर उसके नोट्स नहीं बना रहा तो मुझे मतलब कोई यूटिलिटी नहीं है, कि उसका क्या क्या रिवाइज करेगा नहीं बाद याद में। रहेगा। हाँ मतलब ऐसे तो मैं कुछ भी देखते रहे हम यूट्यूब पे कि पता है आई हैव टॉक टू सो मेनी स्टूडेंट्स एंड दे आर लाइक कि जब मैंने स्क्रीन टाइम पूछा उसके बाद उनका रिप्लाई था कि मैम हम तो यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने कहा नोट्स दिखाओ, तो अगर नोट्स नहीं है तो पढ़ाई नहीं है। यू हैव टू हैव समथिंग कि आप उसे रिवाइज कर सको। For sure. तो ये बताओ अनिमेश, बहुत बड़ा मिथ है कि काम के साथ साथ पढ़ाई नहीं करी जा सकती। I mean, I would have some credibility to speak अभी, but having said that, ये लगता था कि जब while I was working and preparing, लगता था कि मैं बहुत inadequate कर रहा हूँ, क्योंकि वो FOMO रहता है कि majority of the masses full time कर रहे हैं, and मैं काम के साथ कर रहा हूँ, and I had a good work-life balance, but ऐसा नहीं था कि ऑफिस में पढ़ रहा हूँ। 8-9 hours तो ऑफिस में ही जाते थे, इधर ऑफिस का वो बर्डन एंड एवरीथिंग, देयर डेज जब लेट नाइट भी काम करना होता था, कभी कभी वीकेंड्स में भी किया है। तो बट आई थिंक 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस एज में, बिकॉज अदरवाइज वो फियर और इंटेंसिफाई हो जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो आई विल स्टिल बी अनएम्प्लॉयड। एंड जैसे राहुल सिंह यूज फ्रॉम लाइक अ बीटेक IIT से NIT से हो, देन और एक सोसाइटल प्रेशर ऐड हो जाता है कि यार 24 का हो गया, if he does not do that then what is he doing actually? आपके friends would be earning in lakhs crores and आप still be with preparation. तो वो वाले fear से मुझे नहीं जाना था, इसलिए it was a conscious decision I will work. And second कि आपका backup is also ready,
कि probably अगर उसी जॉब में आपको कंटिन्यू नहीं भी करना हो, यू कैन टेक अ कूल ऑफ पीरियड कि ठीक है मैं इस जॉब में 1-2 साल कर लूंगा, फिर आई मूव ऑन टू माई प्लान बी probably if I want to. तो दैट वाज आल्सो नेसेसरी. और ये है कि अगर भी आपको जॉब के साथ लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, मेरे ओपिनियन से आप 1 साल दे दो इस प्रिपरेशन को. अगर हो जाता है तो नहीं होता, अगर नहीं होता देन टेक अप समथिंग, बिकॉज आपकी 1 साल में वो बेस बन जाता है. एग्जैक्टली. तो उसके बाद यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड फिल योर गैप्स एंड. तो 1 साल में अगर आपने ऑनेस्ट वर्क किया है तो सेकेंड ईयर यू कैन टेक अप ए जॉब एंड फिर आपकी प्रिपरेशन वुड बी मच इजियर टू डू अलोंग साइड. बट आप अगर बहुत साल विदाउट अ जॉब करते फिर वो फियर और इंटेंसिफाई होता जाएगा एंड वो फोमो एंड एवरीथिंग गेट्स, मुझे लगता था. एंड आई फील कि आप कभी भी फुल टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते सिर्फ पढ़ के. It's better to have something. So my work was fun, interesting. My entire work was on artificial intelligence, machine learning, which was everything different from UPSC. तो मजा आता था कि I used to look forward to my work as well. No, I'm very interested in that field. मतलब I'm really passionate about learning in the AIs that are going on. और मुझे ऐसा लगता है कि the current youth has to be trained in it. That's going to be the next big revolution. मतलब मैं तो हमारे यहाँ पे तो बच्चों को जो BA वाले बच्चे हैं, मैं तो उनको अभी से AI वीकेंड्स पे AI ट्रेनिंग, एक्सेल, PPT ये सब सिखा रही हूँ. साथ साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यार ठीक है, बट दे आर विद अस 3 साल में तो दुनिया भी तो बदल रही है. हाँ जी. और रेवोल्यूशन मैम होगा नहीं, होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. हाँ, इट्स गोइंग ऑन. और अभी एक्सपोनेंशियली ही बढ़ेगा ये वाला. तो करेक्ट. AI तो बहुत and होने even वाला आप है. देखेंगे कि even ये humanities, core humanities background के if somebody is doing in history or geography or sociology, they are using AI in the research as well. So बहुत चीज़ों का convergence हो रहा है. These are not silos में भी है नहीं. So I've seen a lot of people from developmental studies and humanities background have been using Python, Excel, AI, ML for their own research work as well. तो this is a मतलब indispensable skill बन चुका है in my opinion. सबको सीखना चाहिए. मतलब क्योंकि हमें अगर आने वाले वर्ल्ड के लिए रेडी होना है तो वी विल हैव टू लर्न एंड वी विल हैव टू टीच आल्सो. क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े समय बाद शायद मार्केट में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, अगर स्किल के बारे में बात हो रही है, हाउ वेल डू यू यूज दिस टूल, है ना, हाउ वेल डू यू नो अबाउट AI, मशीन लर्निंग और समथिंग लाइक दैट. तो राहुल, जैसे जब आप प्रिपेयर करते थे तो अगर आपको ऑप्शन मिलता, हाँ जी, कि आप किसी डिग्री के साथ या किसी भी और परस्यूट के साथ प्रिपेयर करो, तो would it have been easier for you? हाँ मैम, अगर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं उधर मारने पड़े एंड ये कॉम्प्रोमाइज़ मेरी प्रिपरेशन नहीं होती तो आई वुड हैव डन इट, है ना. कि कुछ तो IIT के साथ ऐड हो रहा है, फॉर एग्जांपल MBA या कुछ भी, anything, कोई भी डॉक्टरेट, anything which would have given you some kind of a thing. हाँ. क्योंकि अभी जब बच्चा आता है तैयारी में, वो एक जनरल ट्रेंड देखकर आता है कि UPSC की पढ़ाई मतलब राजेंद्र नगर आ जाओ, हाँ ऑब्वियसली, है ना, और यहाँ पे एक जगह ले लो और वो मतलब और उसके बाद 1.5-2 साल 3 साल के लिए खाली बैठ के एकदम प्रिपेयर करने के लिए रेडी होकर आओ. तो मतलब बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है. हाँ मैम, है तो सही, क्योंकि 10 लाख बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं और लास्ट में निकल रहे हैं सिर्फ 1000, तो मुझे लगता नहीं कि 10 लाख का नंबर आ जाएगा इस जन्म में. लेकिन ऑब्वियसली रिस्क तो है. हाँ, तो उसको रिस्क को हमें लेवरेज करने के लिए देयर कैन बी न्यूमरस थिंग्स. मतलब जो मेरे दिमाग में आई वो तो एक यही है कि भाई आप साथ में डिग्री परस्यू कर लो या जॉब परस्यू कर लो या कुछ फ्रीलांसिंग वर्क ले लो. आजकल तो फ्रीलांसिंग वर्क भी बहुत मिल जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे के भी मिल जाते हैं. इफ यू हैव एनी आइडिया देन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट कि और क्या क्या ऐसा किया जा सकता है कि बच्चा आए, प्रिपेयर करे, लेकिन उसका रिस्क लेवरेज हो जाए. एक से मैं आज मिला था, एक स्टूडेंट था जो पूछ रहा था ऐसा हो सकता है क्या सर. तो वो एक कुछ फेलोशिप टाइप, मतलब अंडर प्रिविलेज किड्स को किसी NGO के थ्रू पढ़ाने का, तो उसमें वो 2-3 घंटे दे रहा है. तो आई सेड यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये भी प्रोफाइल इंक्रीज करेगा. हाँ जी, एक तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा ना, आप मतलब यू विल सी द रियलिटी, मतलब आप उतने ही ज़्यादा हम्बल हो जाओगे कि ठीक है अभी तो सर्विस ही करनी है ना. हाँ, तो वो चीज़ आपके आंसर्स में दिख जाएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं. तो मैंने बोला ये तो ठीक है यार,
2-3 घंटे दिन के देने एंड बाकी प्रिपरेशन तेरी हो जाएगी. सो ये भी अच्छा है. वेरी ट्रू. मतलब ऑल्टरनेटिव्स वी कैन सर्च. अभी काफी हैं. और वो कॉन्शियसली करना पड़े बिकॉज आई थिंक एज यू सेड जो स्टैटिस्टिक्स इतना अनफेवरेबल है, यू हैव टू कम विद अ माइंडसेट की फेलियर के माइंडसेट से, ना कि सक्सेस के माइंडसेट से. तो क्योंकि स्टोरीज तो सक्सेस की बनती है ना. probably yes, तो इसीलिए तो you have to be ready with plan B more than your preparation strategies, what I felt. Yes. क्योंकि देखो when we live in a country, है ना, the responsibility, जैसे ऐसे समझो कि अगर शायद इंडिपेंडेंस के टाइम पे राजा राम मोहन रॉय और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी पता था कि इमीडिएट सक्सेस नहीं मिल रही है कुछ, बट दे वर्कड, हाँ जी. दे पुट अप देयर बिट. बिल्कुल. वहां से कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया माइंडसेट में. For sure. So similarly, this mindset which is revolving कि UPSC मतलब आओ एक बहुत बड़ा रिस्क लो, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उसको लेवरेज करो ना. हाँ किसी जी. भी चीज़ से करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये पॉपुलेशन बन रही है ना, क्योंकि यूपीएससी में आ कौन रहा है? अचीवर्स. आप सब अचीवर्स रहे होंगे अपने अपने उसके अंदर, अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, फैमिलीज में. तो और बाकी जो लोग हैं वो भी अचीवर्स ही होंगे. तो जब अचीवर्स आ रहे हैं और अगर सक्सेस नहीं मिल रही, 4 साल बाद द टॉप क्रीम ऑफ इंडिया is actually becoming less confident, anxiety filled, and they are actually out of the marketplace. Correct. मैम आई थिंक फॉर दैट टू हैपन, लाइक रिस्क लेवरेजिंग के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. लाइक देयर आर पीपल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं वर्क करना, बट पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है ना, तो वो कुछ नहीं करते. फिर वो अगर घर पे बोलते हैं ना हमें 10,000 की जॉब ये वो, तो कहेंगे, घर से कहेंगे हम पैसा दे देते हैं, तुम इतनी छोटी नौकरी क्यों करोगे. तो वो जो माइंडसेट है ना, उस जनरेशन गैप, वो कैसे कम हो, उस पर भी बहुत वर्क करने की जरूरत है. बिकॉज देयर आर पीपल हु वांट टू वर्क, बट बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन गैप दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू. This happened with me also. मेरे साथ भी है. So जब मैं राजेंद्र नगर में पढ़ाई कर रहे थे, I got selected in my 3rd attempt. ओके ओके. तो 2nd attempt के बाद ना, तो वो हो ही जाता है ना थोड़ा, आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक वो मोनोटनी सी आ जाती है. खैर फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा बहुत ही एडहॉक था. मैं तो 2.5 महीने ऐसे ही प्रिपेयर किया, प्रीलिम्स दे दिया, ऑप्शनल भी नहीं पता थे, बड़ी एडहॉक तैयारी थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. 2nd अटेम्प्ट में मैंने ठीक से दिया था, लेकिन फिर मेंस नहीं हुआ था. तो उस दौरान आई स्टार्टेड वर्किंग हियर, ओके. है ना. आई गॉट सम, कहीं पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मुझे कहीं नोट्स बनाने का मिल गया, कहीं पे क्वेश्चंस बनाए, कंटेंट वही MCQs बनाए और ये सब. तो व्हेन माय फादर हर्ड अबाउट इट, ही वाज लाइक कि ये क्या काम है, तुम पढ़ाई करो ना, है ना, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ के अंदर, कोई मतलब नहीं है. पहले तुम BDS में वो डेंटल वाले के अंदर पार्ट टाइम जॉब करी थी, अब फिर तुम ये करने लगी, कोई ज़रूरत नहीं, आराम से बैठ के तैयारी करो, हम हैं आराम से, ना, डोंट गेट इनटू दिस, हमें वो 4-5-10 हज़ार रुपये नहीं चाहिए, है ना, आई गिव यू एक्स्ट्रा. लाइक वो एक्चुअली वो हमारे सेगमेंट पे आ नहीं पाते हैं. हाँ, है ना? वही वो उनको लगता है कि ये पैसों के लिए कर रहा है. हाँ, अपन कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ा तो कुछ अलग हो यार. थोड़ा सा मेंटल पीस मिलता है वहाँ से. हाँ. मैम उस पे बहुत जरूरी है. पेरेंट्स को समझाना इज वेरी टफ. नहीं, बट पेरेंट्स को समझना पड़ेगा ना कि बच्चे की समझना प्रोफाइल बननी चाहिए. ट्रू. हमारी वाली जनरेशन है ना, हमारी जनरेशन के लोग तो समझेंगे आगे जाके, बट जो अभी हमसे बड़े हैं उनको समझाना बहुत टफ है. हाँ, क्योंकि एक्चुअली मैं पता है, अच्छा सच बताओ, जैसे आप पढ़ रहे थे, क्या 24 घंटे पढ़ रहे थे? नो मैम. नहीं. अच्छा, उसमें से कितने घंटे हम गिल्ट, टेंशन, वरी अबाउट फ्यूचर, या वरी अबाउट नहीं हुआ तो बट विल माई अंकल से, आंटी से, हम इस चीज़ में कितने घंटे पर डे खराब करते होंगे? हम जितना नहीं पढ़ रहे ना, उसके अलावा तो सारे घंटे सोने के और वो हटा दें तो सब में यही टाइम होता चलता है. हाँ. यही चलता ये है. तो मैम, हाँ, इस वाली प्रिपरेशन में मैंने पर्टिकुलरली देखा है कि डेली हाईज एंड लोज आते हैं. डेली. कभी तो आपको लगता है मैं तो फोड़ूंगा, कभी लगता I है यार. have a solution to it which I think would have helped me. कि for me ये डर था, there are a lot of family issues as well. तो I had allotted मेरे डेली रूटीन में आधे घंटा 10:30 to 11 to overthink only. तो जब भी कुछ टेंशन आता था, and others to stop my brain की रुक जा, I'll give you time, but 10:30 होने दे. So throughout the day, and every moment there was to come, every fear, anxiety, ऐसा लगे कि अभी रुक जा, हम सोचेंगे आपको 10:30. तो every day I used to give 30 minutes to overthink. और बाकी टाइम के लिए नहीं.
But ये discipline, कंट्रोल फॉर हाँ, this discipline is really मतलब did not happen first day पे, First day, हाँ. but over the time I understood कि ऐसा होगा तो नहीं होगा. You'll have to have बट manage इट्स करना अ पड़ेगा. ग्रेट इनसाइट मैम, ये सुन के मजा आ गया ये वाली बात कि मैंने वो वाला टाइम जो पूरे दिन का स्ट्रेस था उस उतने में अलॉट कर दिया. हाँ. एंड उतने में जब अलॉट कर दिया तो इट इज नॉट इवन हार्मिंग अस, है ना. अपन उसको सिर्फ सोच रहे हैं, वो सोच एक्चुअली मतलब फील नहीं हो रही है Correct. कि है ना, अपन उसको एक काम की तरह कर रहे हैं. हाँ. और पता है उस टाइम पे हम सोचने लगेंगे ना, तो क्योंकि वो डेडिकेटेड सा टाइम है ना उस वक्त, तो शायद मतलब उतना वो हाँ, वो भी नहीं करेगा हमें ना, इम्पैक्ट भी नहीं करेगा, हाँ. तंग नहीं करेगा. तब अपन उसको एक्नॉलेज कर लेंगे ना कि ये यही तो प्रॉब्लम थी, फिर मन खुद कहेगा यार ये तुच्छी सी प्रॉब्लम है, व्हाई शुड वी वरी अबाउट इट. वेरी राइट, वेरी राइट. मजा क्योंकि आ गया. मैंने रियलाइज किया कि बच्चे बहुत ओवरथिंक हाँ जी, मैम. करते हैं. उतने में तो अगर कोई साथ में डिग्री कोर्स कर ले या कुछ भी और कर ले, सर्टिफिकेट कोर्स कर ले, एआई ही सीख ले, कुछ भी सीख ले, उतने 2 घंटे में तो उनका ओवरथिंक भी नहीं होगा. कम से कम लग रहा है ना कि साथ में हमारे साथ एक चीज है, एक डिग्री है मेरे साथ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि कुछ आता है मुझे, ऐसा. मुझे आता है. यस. और आपकी प्रोफाइल कभी भी खाली नहीं होगी. हाँ जी. ये नहीं कि आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो कि ग्रेजुएशन डन इन दिस ईयर, उसके बाद 4 साल क्या किया, 3 साल क्या किया, खाली बैठ के तैयारी. तो वो बहुत अपने आप में प्रेशर बिल्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड है. तो घर पे क्या क्या चैलेंजेस आते थे तृप्ति? घर पे तो लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं, रिश्तेदारों के. सबसे बड़ा चैलेंज वही हो जाता है, सब अटेम्प्ट्स थोड़े से बढ़ते हैं. बाकी तो पेरेंट्स का तो सपोर्ट था एज सच. और वही है कि आई विश कि किसी ने पहले गाइड किया होता ना, तो शायद अगर साथ में कोई जॉब पहले ले ली होती तो एक जो फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंस आ जाती और जो मेंटल स्टेबिलिटी और रहती कि हाँ ठीक है एक तो बैकअप है ही, तो वो एक चैलेंज नहीं रहता है. स्पेशली यही एक चैलेंज रहता है बिकॉज आपको एट द एंड अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है. कोई भी जॉब में आप जाओगे तो वो एक पीस ऑफ माइंड रहता है वहाँ पे. तो यही अपने मन में चैलेंज है, घर से ज्यादा खुद का चैलेंज ही था कि अगर जॉब मिल जाए कहीं पे, फाइनेंशियल बैकअप होता तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है अंदर से. बैकअप प्लान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. सो आई विश कि किसी ने पहले गाइड किया होता तो मैं भी साथ में कुछ कर रही होती तो तो बेटर रहता. एक ओवरथिंकिंग का एक एस्पेक्ट कम हो जाता लाइफ से कि हाँ कुछ नहीं हुआ तो क्या. एग्जैक्टली. अच्छा पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, एक पेरेंट्स आए एंड आई टोल्ड देम कि बैकअप प्लान के लिए आप क्या सोच रहे हैं. उन्होंने मतलब कुछ नहीं सोचा हुआ था, मतलब देवर लाइक कि हमें तो बस यही करवाना है चाहे कितने भी साल लग जाएं, है ना, और कुछ करवाना ही नहीं है. एंड आई डोंट टेक एनी चाइल्ड अंटिल एंड अनलेस आई हियर देयर बैकअप प्लान. ठीक है. So good. मैं यहाँ पे तथास्तु में लेती नहीं, क्योंकि मुझे लगता है यार बच्चा आया उसके बाद 5 साल 3 साल बाद क्या, 4 साल बाद क्या, है ना कहीं आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू देयर व्हाट यू से दैट मेंटल प्रॉब्लम दैट चाइल्ड माइट फेस. तो मैं हमेशा बैकअप प्लान के बारे में बात करती हूँ. तो दे लेकिन हमें कोई बैकअप प्लान नहीं चाहिए. मैम ये ऐसी पेसिमिस्टिक बातें मत करो. और हमने तो कहीं पे इंटरनेट पे सुना है कि बर्न ऑल ब्रिजेस, है ना, कि हमने सुना है कि सब कुछ छोड़ के मैंने तो यही किया था, मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था इसीलिए मेरा हो गया. तो मतलब आई वॉज ऑल्सो मतलब कि क्या बोलूँ अब मैं इस बात में. सो नाउ दैट यू हैव क्लियर्ड, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? जहाँ भी सुना गलत सुना आपने. ये ना मैम, ये जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं ना, ये एक टाइम पे ही अच्छे लगते हैं. अगर हम दिमाग लगा के उनको मतलब एनालाइज करने की कोशिश करें तो वो एक किसी कंटेक्स्ट में कहे होते हैं एंड वो हमारे लिए नहीं होते हैं. करेक्ट. मतलब लगभग नहीं होते हैं, 1-2 हो सकते हैं ऐसा. प्लान बी का जो है ना, मैं कुछ चीज़ों से एग्री करता हूँ कि प्लान बी कहीं ना कहीं वीक कर देता है हमारे एफर्ट्स को. अगर वो वीक ना करे, इट्स जस्ट गेम ऑफ परसेप्शन कि हम लोग ये डिसाइड कर लें कि ये वीक नहीं करेगा. मतलब ऑब्वियसली एक बैकअप जरूर रखेंगे, लेकिन अपने जो एफर्ट्स हम मारेंगे वो यूपीएससी को प्लान ABCD सब मान के मारेंगे. स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं होना चाहिए. बैकअप होना चाहिए जैसे कि मतलब आई हैड एन ऑप्शन जब मैं तथास्तु के लिए भी कर रही थी कि किस टाइप का बैकअप होना चाहिए, कि व्हेन आई वाज प्लानिंग कि क्या क्या रखूं मैं ऐसा जो बच्चे के लिए मतलब उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए, लेकिन वो भी ना हो कि बच्चा उसी चीज में लग जाए. हाँ जी. है ना. तो बहुत सारी डिग्रीज थी
जैसे हम ग्रेजुएशन में भी देखते हैं ना बहुत सारे, सबसे क्लोज थे बीए जनरल, सेम टॉपिक्स मर्ज कर दिया। बीए तो वैसे भी सब जगह की एक जैसी है, हाँ। बीए करके कहीं जॉब नहीं है। बिल्कुल। दिस इज द sad ट्रूथ, reality. दैट्स द सैड रियलिटी। बीए करके कहीं पर भी जॉब नहीं है, लेकिन बीए करनी पड़ती है, हाँ जी, लाइक ग्रेजुएशन करनी पड़ती कोई है। एग्जाम देना है तो करनी पड़ेगी। हाँ, कोई भी एग्जाम देना तो वो ग्रेजुएट होना पड़ता है, तो वो क्योंकि सब्जेक्ट सेम थे तो मर्ज कर दो, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद इंसान को एक चीज़ चाहिए होती है जिससे कि वो कहीं पे अपनी कोई जॉब ले सके, वर्थ प्रूव कर सके। सो क्या किया जाए, चलो एमबीए कर लेते हैं कि हाँ जी। एमबीए के बाद चलो और कुछ नहीं तो कुछ तो एक लेवल पे मिल जाती है। बिल्कुल। तो आइडिया इसके वो मर्जर ऐसा हो कि वो आपका इतना स्ट्रांग नहीं हो कि भाई आपका ज़्यादा टाइम आपके बैकअप में ही चले जा रहा है। जैसे है ना, एक बार क्या हुआ ना, मेरे पास एक और बच्चा आया एंड ही वाज लाइक, बहुत 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 ब्राइट बच्चा था, आईआईटीसी था। तो वो आया, उसने बात हुई, वो ही वाज थिंकिंग अबाउट दिस एमबीए प्लस यूपीएससी, है ना। तो लाइक के बट मैम एमबीए करेंगे तो आईआईएम से, है ना। आई एम थिंकिंग कि आईआईएम का करके एंड देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई वाज लाइक कि बेटा वो बैकअप प्लान है, दैट्स नॉट योर प्राइमरी प्लान। अगर आपने वो किया तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी प्लान बन जाएगा। हाँ, फिर मुश्किल होगा छोड़ना। फिर यूपीएससी नहीं कर पाओगे, यू विल हैव टू चूज, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है ना। हाँ जी। आसान थोड़े ना है, नहीं। वो आपका पूरा टाइम ले जाएगा। And what if you do not get in वो IIM ABC में नहीं हुआ फिर, or not the desirable IIMs, फिर आप क्या फिर से उसके लिए एक साल ड्रॉप लोगे क्या फिर, मतलब हाँ, it वो becomes difficult. पूरी जर्नी ही नेक्स्ट exactly. ट्रैजेक्टरी पे चली गई। बट आई थिंक और एक चीज में मुझे है कि लॉट ऑफ पीपल हैव अ प्लान बी कि ये करूंगा अगर नहीं हुआ तो, बट दे डू नॉट प्लान फॉर इट आल्सो। मतलब आई हैड दिस क्लैरिटी कि मतलब दिस डज नॉट हैपन ऑन डे वन, बट धीरे धीरे ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू वांट टू गिव, और उसमें आपको कौन फाइनेंशियली आपको स्पॉन्सर करेगा एंड इमोशनली कौन स्पॉन्सर करेगा, कहाँ पे रहोगे आप, और प्लान बी के लिए कौन से एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए कितना टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी से प्लान बी हो जाएगा। हाँ. A lot of people have कि हम will do for state services या फिर will do RBI Yes. के exams, but उसके लिए अलग प्रिपरेशन लगती है and उसकी भी competition is becoming tougher. तो आप नहीं बोल सकते यूपीएससी प्रिपरेशन हो तो I'll do my state services भी हो ही जाएगा, you can't say that. तो आपको वो वाली भी चाहिए कि अगर मैं 3 साल दे रहा हूँ तो 4th ईयर में मुझे उसके लिए भी 1 साल देना पड़ेगा, फिर तो वो भी थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। यस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, इट विल रिमेन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट कैन नॉट गिव यू अ श्योरिटी, इट कैन नॉट। तो वो अपने आप के अंदर रिस्क है। मतलब मैं तो हमेशा मानती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एक तो जिगरा साथ लेके चलो, मतलब जिगरा इन द सेंस कि यू नो द काइंड ऑफ गट्स दैट इट रिक्वायर्स, एंड सेकेंडली लेवरेज योर रिस्क। कुछ भी दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, यू आर डूइंग पटवारी एग्जाम, यू आर डूइंग एसएससी एग्जाम, वट एवर एग्जाम यू आर गिविंग, ट्राई टू लेवरेज योर रिस्क। क्योंकि कंपटीशन में नहीं भी निकले तो भी ऐसा नहीं कि कहीं के नहीं रहे, करेक्ट। अपने पास कुछ पीछे ना होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज से कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय सलमान खान मूवी, वो होती है ना, वो रॉ वाली मूवी नहीं होती उसकी, वो जो विदेशों में जाता है, टाइगर टाइप की। तो उसमें प्लान ए हमेशा फेल हो जाता है, या प्लान ए फेल होता है तो फिर एक प्लान बी किक इन करता है। वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसने पहले ऐसे सोच लिया था, फिर प्लान बी भी अगर फेल हो जाता है तो क्या होता है, फिर एक प्लान सी किक इन करता है। मैं तो लोगों को बोलता ना कि आई हैव प्लान एफ तक है मेरे पास। आई एम अ वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन इन जनरल, तो आई यूज्ड टू थिंक कि मतलब ये चल रहा है कि नहीं होगा इस एग्जाम में, तो आई हैव प्लान बी सी डी ई एफ तक रेडी थे। यस, सेम विद मी। मैं तो जॉब छोड़ के तथास्तु करने लगी, उसके अंदर भी मैंने तो सारे सोच लिए थे कि अगर बाय चांस ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके बाद ये कर लेंगे, फिर जब तक एक सफिशिएंट हो गया, हाँ ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। मुझे ऑनेस्टली बहुत डर लगता है ये सब चाहे सोचने से कि हाँ मतलब सेम, आई एम आल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन। बीसी मुझे तो सोचना भी नहीं, मतलब गलती से अगर मैनिफेस्ट वो हो गया मैनिफेस्ट तो हाँ नहीं, उसे सोचना नहीं है, दैट इज बैक ऑफ द माइंड पिलर जो एक पड़ा रहता है। जैसे एक बार सोच लिया ना, वंस यू हैव थॉट अबाउट इट, जैसे मैंने एक बार सोच लिया, जैसे कि ऐसे समझो कि है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग, अगर उस बात को और क्लियरली कहूँ तो बाय चांस अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती, है ना। मैंने रेजिग्नेशन इज़ अ बिग रिस्क, ठीक है। खैर चलो, माई हस्बैंड इज़ एन ऑफिसर, तो फिर भी मतलब आई हैव अ सिक्योरिटी दैट वाइज, बट उसके बाद था कि अगर नहीं भी करते तो क्या करेंगे, चलो ठीक है, आई कैन राइट वेल, है ना, I can write books, maybe I can speak, I can do some poems, I can do, मतलब I have thought about many things, है ना, I paint, I can teach तो है ही, teach तो भी कर ही रही हूँ।
लेकिन अगर टीच भी नहीं करूँगी तो क्या करूँगी, है ना? तो वो मैंने अपने वो सोच लिए, वैसे तो मैम देयर आर इनफाइनाइट थिंग्स, है ना? आपने सोच लिए, देन इट इज इन द बैक ऑफ द माइंड. अब True, I think वो that used to give me confidence कि Yes. अगर ये नहीं हुआ तो I'll do this. अगर उसमें भी नहीं हुआ तो there is some ये option है. हाँ, हाँ. तो easy नहीं Exactly. होना चाहिए. इट शुड गिव यू कॉन्फिडेंस, हाँ. क्योंकि Yes. मेरे पास आईआईटी का वो था एक टैग, टैग था. तो वो प्लान भी ये नहीं यही, कि हो जाएगा. हाँ, कि मैं कुछ तो कर लूंगा. वैसा. हाँ, इसीलिए हाँ, मुझे बाकी चीजें सोचने में ऐसा लगता था कि नहीं, हो जाएगा. हाँ, मैं प्लेसमेंट में इसीलिए नहीं बैठा था, मुझे नहीं ये वाला रखना अच्छा. कि मतलब फुल फ्लैश इसी को देना है कि 1% भी उधर डाइवर्ट ना हो. हालांकि वही है, इमेच्योरिटी थी. नहीं, ये तो यार हम लोग है ना, आई ऑलवेज से द पर्सन हु गिव्स फर्स्ट अटेम्प्ट इज डिफरेंट, सेकंड अटेम्प्ट पर्सन इज डिफरेंट, थर्ड अटेम्प्ट पर्सन इज डिफरेंट, बिल्कुल. फिफ्थ अटेम्प्ट पर्सन इज डिफरेंट, और लास्ट अटेम्प्ट पर्सन वो एकदम जिहादी वाले बोर्ड में रहते हैं, है ना? लास्ट अटेम्प्ट होता है. ड्यूरिंग प्रिपरेशन. हाँ जी, हाँ, बिल्कुल. मतलब आई हैव सीन सो मेनी किड्स के वो लास्ट अटेम्प्ट होता है ना, दे लाइक अब तो हो गया, अब तो जो करना है करेंगे और उसके बाद बस निर्वाण मिलेगा.